Hello everyone, welcome to chapter 9, Queries, Forms and Reports, video part 2. Yesterday, in last video, we saw how can we sort and filter our data. Have a look over that, then we will go for creating the queries. I already have the MS Access file, so I'm opening this file. The way, how can we create the queries? How can we create the tables? Is clear to you. First of all, we have to go to the view button, design view. Under the design view, what are the fields we required? We are writing its name and its data type. Then click on datasheet view. Then we want to save our table. Then this field names will appear. You have to fill these entries. After completing the entries, if we want to sort our data, then suppose that we want to sort our names, then click on the names field, go to the home tab, sort and filter group, ascending order, so that the data will be arranged in ascending order. Click on descending order, so the data will be arranged in descending order. Otherwise, you can click on this name field, right click there. You are getting the sort option A to Z and Z to A. In which manner you want to sort your entries, you can select any of the option and sort your data so that your data will be sorted here. If you want to remove all the sorts, that means you don't want the ascending and the descending order, then you can directly click on remove sort. This way, the sorting will be removed. If you want to sort your data on marks, then also you can do the same thing. Click on the marks field, click on descending order. So the data will be arranged in descending order and the symbol is appearing here. This way we can sort text and numbers. The next one is filtering the data. Filter, that means we want only few data among all the data. That means if you want to go for filter, then click on home tab, sort and filter group, filter option. When you are clicking on the filter option, you can click on numbers filter. On numbers filter, if you want the number greater than, suppose you want the number greater than 275, then click on OK button. The numbers which are greater than 275 is appearing here, which is sorted and filtered. Sorted in descending order and filtered, that means the number is above 275. If you don't want the descending order, then you can click on remove sort option to remove this sorting. And if you don't want the filter, then you can click on toggle filter. Toggle filter helps us to remove filter. So this way you are getting the full table. If you want to search something, then we can search here in this search box. If you want to search the name Pooja, then you can search the Pooja here. The Pooja will be highlighted in this table. If you are writing the name which is not in the table, suppose that I am writing the letter Zia. So Zia is not there in this table, but the letter J is available here. So J is highlighted. Other than this, the letters are not here, so it is not highlighted. Today, we will see how can we create queries. So first of all, what is query? Queries are the method of getting answers to the questions about the data. That means if you have any of the queries, then you can get the answer with the help of this query. The queries can be run again at any time in future. Once you created the table, ये आपकी table बनी हुई है, टेबल के अंदर आप नई फील्ड्स एंट्री कर सकते हो, लेकिन क्वेरीज के अंदर आप नहीं कर सकते हो. दैट मीन्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, इफ यू आर सेइंग दैट द क्वेरी, दैट मीन्स वी आर लॉकिंग अवर टेबल. टेबल आप लॉक कर रहे हो, उसके अंदर नई एंट्रीज नहीं करना चाह रहे हो टेबल में, तो क्वेरी बनती है. क्वेरी हम कैसे बनाते हैं? तो क्वेरी बनाने की दो मेथड्स होती है, क्वेरी थ्रू डिजाइन व्यू एंड क्वेरी थ्रू क्वेरी विजार्ड. So first of all, for creating any of the type of the query, क्लिक ऑन क्रिएट बटन. ये हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे. इस क्रिएट बटन के अंदर आपको क्वेरीज ग्रुप मिलेगा. क्वेरीज ग्रुप के अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन है, क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे थ्रू क्वेरी विजार्ड. फर्स्ट ऑप्शन क्वेरी विजार्ड.
क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा टेबल आप सेव करना चाहते हो, यस वी वांट टू सेव अवर टेबल। देन यहाँ आप न्यू क्वेरी विंडो में सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन चूज करोगे एंड ओके करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हो तो आपके सामने एक टेबल अपीयर होती है, सिंपल क्वेरी विजार्ड, यहाँ पर टेबल अपीयर होती है। अभी हमारी फील्ड के अंदर सिर्फ एक टेबल है तो एक ही टेबल आ गई। अगर बहुत सारी टेबल्स है तो ऑल द टेबल्स विल बी अवेलेबल इन दिस ऑप्शन। विच टेबल यू वांट, यू कैन चूज इट फ्रॉम दिस लिस्ट। नाउ व्हाट आर द एंट्रीज यू वांट इन योर क्वेरी, कौन कौन से एंट्री चाहते हो? रोल नंबर, तो रोल नंबर चाहते हो तो इस एरो बटन से आप क्लिक करोगे, रोल नंबर आपकी फील्ड में आ जाएगा। देन नेम चाहते हो, नेम पे क्लिक करोगे, एरो बटन पे क्लिक कर दोगे। मार्क्स चाहते हो, मार्क्स पे क्लिक करोगे, एरो बटन पे क्लिक कर दोगे। ऐसे आप जो भी फील्ड्स चाहते हो वो सारी फील्ड्स आप इस एरो बटन से ले सकते हो। सपोज आप नेम्स नहीं चाहते हो, उसको वापस भेजना चाहते हो, तो आप इस बैक एरो बटन से भेज सकते हो। सारी एंट्रीज चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, सारी एंट्रीज रिमूव करनी है तो सारी एंट्रीज अंडू हो जाती है। ओके, तो ये मैंने सारी एंट्रीज ले ली है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। Now, in which manner you want to see your query? In a detail view or in the summary view? I'm choosing the option as detail. Detail, then click on next button. Now you want to open your query or you want to modify your query. So I want to open my query and then give the title. That means by which name you want to save your query. किस नाम से आप क्वेरी को सेव करना चाहते हो? तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट क्वेरी। If you want to give any another name, you can give it as your choice. And then click on finish button. Your query is created here. यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी टेबल के अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड थी, क्लिक टू ऐड एक एक्स्ट्रा फील्ड थी, बट क्वेरी के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ हमारी टेबल लॉक हो चुकी है। जितनी एंट्रीज टेबल में थी उतनी एंट्रीज हमने क्वेरी में ली है, तो वही सारी एंट्रीज हमको क्वेरी में दिख रही है। Okay, this is the student query. This way we create our query through query wizard. The next one is we want to create a query through query design. आप किससे बनाना चाहते हो? Query design से। तो वही टेबल 1 पे आप क्वेरी बनाओगे। टेबल 1 यहाँ से हम क्रिएट टैब में जाएंगे, क्वेरीज विजार्ड में जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पर। क्वेरी डिजाइन के अंदर आप कौन सी टेबल लेना चाहते हो? यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, टेबल 1, तो हम टेबल 1 लेंगे और ऐड कर देंगे। उस टेबल 1 के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज है? नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हमारे इसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम क्वेरी लेना चाहेंगे, टेबल लेना चाहेंगे, उस टेबल में से सपोज हम नेम्स चाहते हैं, तो नेम्स हमने ले लिया, रोल नंबर ले लिया, क्लास ले ली, मार्क्स ले ली। कैसे लेंगे? यहाँ से चूज करेंगे। फील्ड नेम में हम कौन सी फील्ड लेंगे? नेम्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक एक्शन जो हमने किया है उसको मैं अंडू करके, ये जो टेबल मेरी आई है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज 2 टेबल एक जैसे इंसर्ट हो गई है। मार्क्स मुझे चाहिए, तो यहाँ से हम चूज करेंगे मार्क्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर ले लिया। उसके बाद में क्या चाहिए? नेम्स चाहिए तो नेम्स ले लिए। यही 3 एंट्रीज मुझे टेबल में क्वेरी में चाहिए, टेबल 1 से। ठीक है, अब ये आपका क्राइटेरिया, आप क्या चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या सॉर्टेड ऑर्डर में हो। ठीक है, तो मेरे मार्क्स कैसे होने चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ये कंप्लीट होने के बाद में हम अपनी क्वेरी को रन करेंगे। कहाँ पे मिलेगा ये रन बटन? रिजल्ट्स ग्रुप में, डिजाइन टैब के रिजल्ट्स ग्रुप में, और रन कर देंगे। तो आपको ये देखो टेबल दिख रही है क्वेरी 1, जहां पर आपके मार्क्स जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, रोल नंबर से और नेम से। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अवर क्वेरी। नाउ वी वांट टू सेव अवर क्वेरी, सो फॉर दिस वी हैव टू क्लिक ऑन दिस query 1 button, right click it here, click on save. Save as dialog box is appearing. यहाँ पे हमने जो क्वेरी डिजाइन से क्वेरी बनाई थी, तो हम यहाँ नाम दे देते हैं क्वेरी थ्रू क्वेरी डिजाइन। ये हमने किससे बनाई है क्वेरी? क्वेरी डिजाइन व्यू से हमने बनाई है। ओके, 2 ऑप्शंस थे हमारे पास में, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। तो ये हमने किससे बनाई है? क्वेरी डिजाइन से। तो हमने वही सेम चीज यहाँ लिख दी और ओके कर दिया। तो दिस वे वी कैन क्रिएट अवर क्वेरी. I explained 2 different methods for creating the query. First one is to click on create button. We have queries group.
In this queries group, we have two different windows, that is Query Wizard and Query Design. क्वेरी विजार्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास में न्यू क्वेरी विंडो आता है. सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे. देन आप अपनी टेबल या क्वेरी क्या क्या चूज करना चाहते हैं. एंट्रीज बढ़ गई है, हम टेबल 1 पे क्वेरी बनाना चाहते हैं, सारी एंट्रीज लेना चाहते हैं और नेक्स्ट करना चाहते हैं. नेक्स्ट के बाद में आप कौन सा व्यू चाहते हो, डिटेल व्यू करोगे, नेक्स्ट करोगे. उसके बाद में अपनी क्वेरी का नाम दोगे और फिनिश कर दोगे. तो ये मेरी टेबल 1 क्वेरी बन चुकी है जो अभी हमने यहाँ बनाई थी, स्टूडेंट क्वेरी बनाई थी. ठीक है, इट्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट वन, क्वेरी थ्रू क्वेरी डिजाइन. क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे हम, यहाँ पर टेबल 1 हम ऐड करेंगे. उसके बाद में कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए वो फील्ड्स हम यहाँ से चूज कर लेंगे. जैसे मुझे नेम चाहिए तो मैंने नेम्स ले लिया और मुझे मार्क्स चाहिए तो मार्क्स ले लिए. मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे मार्क्स हो वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो, तो जो सॉर्ट ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और रन बटन पे क्लिक कर देंगे, रिजल्ट्स ग्रुप में रन बटन. तो ये हमारी क्वेरी क्रिएट हो जाती है. क्वेरी को सेव करने के लिए क्वेरी 1 पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर आप अपनी क्वेरी का नाम दे दोगे और बुक कर दोगे. तो ये आपकी क्वेरी क्रिएट हो गई है. दिस वे वी कैन क्रिएट अवर क्वेरी. आई होप how to create the queries are clear to you. We can create our queries through two different methods. I hope this is very clear to you. Thank you students for watching this video.